हाँ जी, हेलो कैंडिडेट्स, आई होप यू आर देयर। तो आज हम सेमिनार शुरू करते हैं एंड दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माइंड ऑफ all of you also, in I can say in the whole of younger generation also, how to get a government job. And if we start with this particular topic, how to get a government job, the first thing I think is, that is what I'm going to ask you is, okay, what is the most important and the most happy moment in your life? Which is the most happy moment in your life? Now, when I search it on the Google, there are many answers. But when I select a few, then I find that these are, you can say, the most happy moments in your life. Meeting your life partner, wedding day, first child, and all this. But the question is now, how to get there? You can have all these things, but only after you are something. You are something means either you are an industrialist, or you are a big businessman, son of a big businessman, or you are a politician, or you are a having a shop, self-employed, agriculturist, or you have a job in your hand. Only then you can enjoy those special moments of your life. So that is why it is very important that you should have a job in your hand. Now, the question is, where are the jobs? Jobs हैं हमारे पास unorganized sector में भी हैं, private sector में भी हैं, और government sector में भी हैं. Okay? All jobs are good jobs, but the question is, how many of you are looking for a government job? Or I can say, how many of you do want that I should have a government job? Okay? This is a question. मैंने एक question आपको भेजा है, and you will be having it on your screen also. तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए, so that we can move forward. और आपको I am giving 30 seconds. Okay. हाँ जी. So what is the result of the poll? How many of the candidates say, okay, we want a government job? How many candidates? Yes. 100% candidates, they say we want a government job. Now that means everybody is looking for a government job, and this is very important. Now that अब देखते हैं कि पेरेंट्स का भी एक ड्रीम है, ठीक है ना. हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा जो है लाइफ में सेटल हो जाए, और बेसिकली एवरी मिडिल क्लास पेरेंट, उसका एक एस्पायरेशन है कि माय चिल्ड्रन शुड गेट सेटल डाउन, दे शुड हैव ए गुड गवर्नमेंट जॉब, और वो जिंदगी में सेटल हो जाएं. जैसे कहते हैं ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ठीक है ना. सो द सेम वे कि पेरेंट्स की जो है ड्रीम है, एंड बेसिकली उनका जो ड्रीम है, दैट इज योर लाइफ ऑल्सो, आपके जिंदगी के लिए है. नाउ क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना. इज गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब डिफिकल्ट? ये भी एक पोल में आपके पास क्वेश्चन आ रहा है. नाउ once again I give you some time to answer this particular question. 30 seconds हैं आपके लिए, जल्दी से जवाब दीजिए. Is getting the government job difficult? ये सर नो में जवाब देना है आपको. यस. तो अभी आपका पोल का रिजल्ट नहीं आया है, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस पोल. Yes, 75% of the candidates, they say, okay, yes, it is difficult to get a government job. Okay, now, according to me, it is not difficult. Getting a government job is not difficult. The only thing is you should know how to get it. Once again, you should know how to get it. That is very important.
पीपल डू नॉट नो, लोगों को पता ही नहीं होता। एंड व्हेन आई कम टू यू, एक दो स्लाइड्स के बाद मैं आऊंगा आपके पास, तो आई विल टेल यू कि व्हाट इज द गैप, वो गैप कहां पे है। और हम देखते हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब को कैसे हासिल किया जाए, हाउ यू कैन गेट ए गवर्नमेंट जॉब। अब मेरा जो है ये एक इंफॉर्मेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि हालात पहले से बहुत बदल चुके हैं। पहले देयर यूज्ड टू बी डिस्क्रिशनरी पावर्स, पॉलिटिशियंस के पास थी, ब्यूरोक्रेट्स के पास थी, दैट दे कैन एम्प्लॉय समबडी और उसे नौकरी दे दी या डिफरेंट मीन्स के द्वारा नौकरी मिल गई। आज की डेट में ऐसा नहीं होगा। देयर इज यूपीएससी, देयर इज एसएससी, देयर इज पब्लिक सर्विस कमीशन, देयर इज सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। All examinations are taking place through these particular tests. और उस टेस्ट में जिसके अच्छे नंबर आएंगे, मेरिट बेस के ऊपर सिलेक्शन होगी। गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि ग्रेड बी तक नो इंटरव्यू, ग्रेड बी तक नो इंटरव्यू। दैट मीन्स नाउ द सिलेक्शन विल बी सिंपली एंड सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ योर तैयारी, प्रिपरेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब। वो तैयारी कैसे करनी है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, कि ये तैयारी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि दिस इज ऑल मेरिट बेस्ड नाउ। तो अब ये तैयारी कैसे होनी है, इसके लिए आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू पर्टिकुलर सेक्शंस: इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन, एम्पावरमेंट एंड एक्शन। सबसे पहले इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन, एम्पावरमेंट एंड एक्शन। ठीक है, ये चार चीजें, आइडिया, IDEA, याद रखिएगा इन चारों चीजों को, कि ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज आज की डेट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस लाइफ इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज, और हम कहते हैं डाटा, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है, डाटा नहीं है, तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन फिर आपको मैं दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, आप कहेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। क्वेश्चन जो है, वंस अगेन ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूं मैं, आपको बता रहा हूं ये चीज। हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, क्या आपको इसके बारे में मालूम है कुछ? वंस अगेन ये छोटी सी पोल है और आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। ऑप्शंस आपके पास 50, 5 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 75 लाख। ठीक है, सो व्हाट इज योर आंसर? गेट मी द आंसर, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं। आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। हाँ जी, रिजल्ट्स। हाँ जी, रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास। ठीक है जी, इट इज 36% पीपल से 15 लाख, 18.8% से 5 लाख, 32% से 50 लाख एंड 12% से 12.5%। ठीक है, ओके, तो बहुत सारे अराउंड 33% कैंडिडेट्स दे आर डेफिनेटली नियर द आंसर। जैसे कि बेसिकली 50 लाख जो कैंडिडेट्स हैं दे आर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी लोगों को पता ही नहीं है, दे डू नॉट हैव द राइट इंफॉर्मेशन कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं। नाउ दैट मींस 67% ऑफ द पर्सन उन्हें पता ही नहीं, दैट मींस दे आर अनअवेयर। जब किसी चीज का हमें अपनी मंजिल का नहीं पता, रास्ता नहीं पता, तो वहां पहुंचेंगे कैसे फिर? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और कहां कहां पे एम्प्लॉइज में, डिफेंस में है, रेलवे में है, पुलिस में है, सीआरपी में, स्कूल, हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, पटवारी, कानूनगो। नाउ दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स व्हिच आर अवेलेबल। मेरा जो क्वेश्चन था आपके पास दैट वाज अबाउट के सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने एम्प्लॉइज हैं, तो वहां पे 50 लाख एम्प्लॉइज हैं। और मैं पब्लिक सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, यहाँ पे जॉब्स हैं। और जब मैं बात करता हूं कि टोटल हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में वहां पे कितने एम्प्लॉइज हैं,
तो अगर 50 लाख एम्प्लॉइज आर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट में 2 करोड़ 20 लाख एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं। एंड इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 25-30 लाख एम्प्लॉय वहां पे काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ देयर आर 3 करोड़ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, इट्स अ बिग नंबर विच इज नॉट नोन, जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता कि दीज आर द नंबर्स। एंड आई जस्ट जैसे पोल ने बताया कि 67% को तो पता ही नहीं है इसके बारे में। जिसको पता नहीं है तो वो कैसे रास्ता ढूंढेगा, कहां पहुंचेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 करोड़ 70 लाख एम्प्लॉय तो सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में है, और इसके अलावा मैं कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में है, तो मिला के हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ हो जाएंगे। और अगर मैं अब क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी वैकेंसीज होती हैं हर साल, every year, how many vacancies every year in the central government? Yes, once again I'm giving you 30 seconds. मैंने किस कर दिया था, दोनों दोनों कर दो। हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर, ओके, यस, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है कि कितने वैकेंसीज होती हैं, ये भी लोगों को पता नहीं होता। Many times we have visited colleges, सेमिनार किए हैं, वहां पे जाके बच्चों से बात करते हैं, असलियत क्या है वो नहीं पता होती बच्चों को। एंड क्योंकि पता नहीं है इसलिए वो अप्लाई भी नहीं करते हैं, और डेफिनेटली जब अप्लाई नहीं करेंगे फिर नौकरी कहां से मिलेगी। तो दैट इज, इसीलिए ये जरूरी है कि आपको असलियत पता होनी चाहिए, रियल पोजीशन पता होनी चाहिए कि कितनी जॉब्स होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रोक्सीमेटली हर साल। ओके, तो हमारे पास जो रिजल्ट है, डू यू नो हाउ मेनी वैकेंसीज? तो 38% से 1 लाख, 36% से 1,50,000, कुछ ने 3 लाख कहा है, किसी ने 50,000 कहा है। तो बहुत सारे ना, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख जॉब्स आर एवरी ईयर। डिफेंस में 50,000, रेलवे में 50,000, अदर मिनिस्ट्रीज में 50,000। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख जॉब तो हर साल होती ही होती हैं, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होती। ठीक है, नाउ दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी पता होना चाहिए कि कितनी कितनी जॉब्स हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वहां पे भी देयर आर नंबर एंड नंबर ऑफ जॉब्स। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में एक चीज और, बाय लॉ ऑफ एवरेज मैं एक सिंपल सी बात करता हूं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 50 लाख वैकेंसीज हैं और बाय लॉ ऑफ एवरेज एक एम्प्लॉय 30 साल जॉब करता है, तो दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 वैकेंसी हर साल होनी चाहिए वहां पे, अप्रोक्सीमेटली बाय लॉ ऑफ एवरेजेस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट में बात करूं, तो वहां पे भी और जो है इसके 5 गुना वैकेंसीज वहां पे होंगी। आज की डेट में अगर हम स्टैट्स देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वहां पे इट शोज 7 लाख वैकेंसीज आर देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। 7 लाख वैकेंसीज हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड शायद आपको ये पता नहीं है कि अभी 2 साल पहले एक भर्ती हुई रेलवे की, 1,13,000 सिर्फ in one shot, 1,13,000 vacancies were filled there also. Similarly, CRPF, CISO में भर्ती हुई तो वहां में 63,000 vacancies वहां पे थी। तो जब ऐसी vacancies आती हैं तो they come in big numbers, and that is why उनके लिए भरना, अप्लाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, और जिसके बारे में कैंडिडेट्स को नहीं पता होता। Now, when I say कि how to get the government job, this is the information you must have with you. This is the, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी आपको, ये भी पता होना चाहिए। When we were in the colleges में थे या we were looking for the job, तो एक न्यूज़पेपर आता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो वो वीकली न्यूज़पेपर है, हम तो जाके वहां से शॉप से खरीदते थे। आज की डेट में वेबसाइट्स हैं
और एम्प्लॉयमेंट न्यूज की है, उसकी भी वेबसाइट है। वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आती है हमेशा कि कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। इसके अलावा भी यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, पीपीएससी, ये इतनी सारी साइट्स हैं, वहां पे जो है सब इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा ज्ञानम की आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे भी आप सारी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं। सोशल मीडिया, टेलीग्राम है हमारा, इंस्टा है, यूट्यूब है, वहां पे भी कीप ऑन अपडेटिंग दिस इंफॉर्मेशन कि कहां पे जॉब्स निकल रही हैं। सो अब देखते हैं, 90% स्टूडेंट मिस 90% नोटिफिकेशंस, और दिस इज ट्रू, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हम कॉलेज में जब जाके सेमिनार करते हैं तो वहां पे ये चीजें शो होती हैं कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि कितनी जो वैकेंसीज हैं। तो दैट मीन 90% स्टूडेंट जो हैं 90% नोटिफिकेशन मिस कर देते हैं, और जब वो उन्हें मिस कर देते हैं, डेफिनेटली दे मिस द चांस टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब आल्सो। ओके, सो दैट्स व्हाई यू कैन डाउनलोड ज्ञानम ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, और वहां पे आपको ये रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। अब एक और क्वेश्चन, आज की डेट में पता है आपको, आर यू अवेयर कि आज की डेट में लेटेस्ट जो वैकेंसीज है वो कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी वैकेंसीज हैं? एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे पोल में दे रहा हूं, ठीक है, तो उसका भी जवाब दीजिए, यस और नो में जवाब दीजिए। आर यू अवेयर? यस और नो में जवाब है, जल्दी से आ जाएगा। हाँ जी, इज इट अपडेटेड? अभी अपडेट हो रहा है, क्योंकि जब आपको ये चीजें नहीं पता होंगी कि आज की डेट में क्या है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जॉब अब निकली है। ओके, हाँ जी, रिजल्ट्स आर देयर। हाँ जी, चलिए, 63% कैंडिडेट्स दे से हमें नहीं पता कि कितनी जॉब्स निकली है। दैट मीन्स जिनको पता नहीं, ठीक है जी। फिर मुझे वो छोटी सी कहानी याद आ गई है ना, एक है तो पंजाबी में, ठीक है ना, बट आई थिंक यू विल लाइक इट, ठीक है ना, कि एक छोटी सी कविता थी, बहुत छोटी सी है, मैं सुना दूंगा यहाँ पे आपको, ठीक है ना। कहते रावी चो निकले तिन नहरा, दो सुकियां ते एक वगदी नहीं, जेड़ी वगदी नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਾਮਨ, ਦੋ ਡੁੱਬ ਗਏ ਇੱਕ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗਾਵਾਂ, ਦੋ ਫੰਡਰ ਇੱਕ ਸੂੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਛੇ, ਦੋ ਲੰਗੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸੁਨਿਆਰ, ਦੋ ਅੰਨੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀਂਦਾ नहीं। ठीक है ना, बेसिकली अब क्या है कि ये बेसिकली हमारी ये इंफॉर्मेशन गैप्स हैं हमारे, ठीक है। जब तक हमारी ये इंफॉर्मेशन गैप्स नहीं दूर होते ना, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ती। 63% पर्सन्स को ये पता ही नहीं कि कहाँ पे जो आज की डेट में जॉब्स निकली हुई हैं। आज की डेट में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीसीएस की जॉब्स हैं वो निकली हुई हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वहां पे भी जॉब्स हैं वो भी निकली हुई हैं। सीपीओ की जॉब्स वहां पे निकली हैं। आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। सैबी की जॉब्स जो हैं वो भी निकली हुई हैं। पटवारी की नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। अभी पीछे हिमाचल में एग्जाम हुआ था और अभी पंजाब में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकती है। द फाइल इज इन द मूव। तो दैट मीन्स आपको अगर तैयारी करनी है तो ये तैयारी अभी से हो जानी चाहिए। पीपीएससी में जैसे पीसीएस की जॉब्स हैं वो निकली हुई हैं। हेडमास्टर की जॉब्स हैं वो भी अभी चल रही हैं। 22 इज द लास्ट डेट फॉर दैट ऑल्सो।
तो ये इंफॉर्मेशन यू मस्ट कीप योरसेल्फ अपडेटिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब तक हमें पता नहीं होगा रास्ते का तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाउ बेसिकली अब बात करते हैं कि जॉब्स करनी है, तो these are the jobs we can say the easiest to have. स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस स्टाफ कमीशन, हरियाणा का भी है, हिमाचल का भी है, पंजाब का भी है, इनकी स्टेट जॉब निकलती हैं। ठीक है, हरियाणा के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि पिछले कुछ सालों में वहां पे कुछ धांधलेबाजी हुई थी और उसकी वजह से जिन्होंने की दे आर स्टिल इन जेल फॉर 10 years, उनको 10 साल की जेल हो गई। तो उसके बाद पिछले 4-5 साल में वहां पे रेगुलरली बिल्कुल ठीक तरीके से एग्जाम हुए और सबको प्रॉपर तरीके से जॉब भी मिली है, और दिस इज हैपनिंग इन द अदर स्टेट्स आल्सो। तो यहाँ ये हो गया हमारा स्टेट का। उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट जॉब हो गया, वहां पे जॉब जैसे मैंने पहले बताया था कि रेलवे में 1,13,000 जॉब निकली थी, अभी और दोबारा से वी आर एक्सपेक्टिंग बहुत सारी एनटीपीसी की जॉब जो अभी निकलने वाली है वहां पे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल है, वैसे तो सीजीएल के मुताबिक विद इन 1 year द प्रोसेस शुड गेट कंप्लीटेड, बट बिकॉज ऑफ द बिग नंबर्स तो वहां पे कहीं डिले हो गया है। पर वी कैन एक्सपेक्ट नाउ कि यहाँ भी जल्दी से जो है और जॉब डिक्लेयर होंगी, सीपीओ की निकली हुई हैं और जॉब भी यहाँ पे अभी डिक्लेयर होंगी। देन पीसीएस की जॉब्स हैं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो वहां पे भी जो सिविल सर्विसेज की जॉब्स हैं दे आर देयर। तो उसके द हाईएस्ट लेवल ऑफ जॉब हायरार्की में आईएएस की आ जाती है। तो ये यहां से शुरू करते हैं कि दीज आर द इजीएस्ट टू गेट। उसके बाद आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, देन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इसके साथ ही आईबीपीएस को जोड़ सकते हैं, आईबीपीएस इज आल्सो सेम, फिर पीसीएस, आईएएस। सिमिलरली बैंकों की बात करें, क्योंकि रिजल्ट में हम देख रहे थे कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स दे वांट अ जॉब इन द बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, नाउ बैंकिंग सेक्टर में इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का कि एक तो बैंक दिखते ज्यादा हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, एंड सेकेंडली बैंकिंग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत फॉर्मलाइज हो गया है। अगस्त से दिसंबर के बीच एग्जाम होंगे, जनवरी में उनका रिजल्ट आ जाएगा, फरवरी मार्च में इंटरव्यू हो जाएगी और अप्रैल में उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रोसेस आईबीपीएस ने जो है बना लिया है और उसकी वजह से उसके ऊपर विश्वास भी बहुत बढ़ गया है। तो ये जो एग्जाम है आईबीपीएस के, आरआरबी के, अगस्त की नोटिफिकेशन है इसकी है कि भी ये होना चाहिए। फिर आईबीपीएस नेशनलाइज बैंकों के एग्जाम है, एलआईसी इंश्योरेंस के एग्जाम है, इसके ऊपर आ जाते हैं स्टेट बैंक के एग्जाम आ जाते हैं, और उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ये भी आप सबको पता होगा आज की डेट में, आई कैन रिकॉल कि व्हेन वी स्टार्टेड अराउंड 15 years बैक तो सिंगल एग्जाम हुआ करता था, इट यूज्ड टू बी वन सिंगल एग्जाम। पर आज की डेट में देयर इज अ 2-tier एग्जाम, कहीं कहीं 3-4 tier भी एग्जाम है। तो फर्स्ट ईयर इज बेसिकली एक एलिमिनेशन एग्जाम है, जैसे हम Tier 1 एग्जाम कहते हैं या प्रीलिम एग्जाम कह देते हैं। तो उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है, Tier 2 एग्जाम होता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे ग्रेड बी तक नो इंटरव्यू प्रोसेस आज की सरकार ने कह दिया है, क्योंकि इंटरव्यू में सबको लगता था कहीं ना कहीं जो वहां पे सिफारिश चल जाती है, तो ये भी उन्होंने डिसाइड कर दिया है सरकार ने कि ग्रेड बी तक कोई इंटरव्यू नहीं होगी। जहां कहीं अभी हो भी रही है तो वहां भी जो है ये चीजें बंद हो जाएंगी। वहां भी ये चीजें बंद हो जाएंगी। और फॉर योर इंफॉर्मेशन यू शुड ऑल्सो बी अवेयर, एक चीज और पता होनी चाहिए आप सबको कि गवर्नमेंट ने कहा है कि एक सीईटी होगा आगे से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें ऑल एम्प्लॉइज जहां भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकले तो उनका एक कॉमन टेस्ट होगा, बजाय इसके कि आप अलग अलग फॉर्म भरेंगे या अलग अलग एग्जाम के लिए पैसे भरेंगे। सिंगल एक एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और उसके थ्रू जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। उसकी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, जब आएंगी वी विल बी शेयरिंग दैट इंफॉर्मेशन विद यू आल्सो।
ओके, तो अब हमारे पास, मैंने जैसे पहले कहा था कि गवर्नमेंट जॉब को पाना मुश्किल नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, बट व्हाट यू शुड नो इज कि जितने भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहां पे सब चीजें कॉमन है। चाहे आप सबऑर्डिनेट स्टाफ की बात करें, चाहे आप ऑफिसर की बात करें, चाहे आप आरबीआई की बात करें, चाहे आप आईएएस की बात करें या पीसीएस की बात करें, दीज आर द कॉमन सब्जेक्ट्स। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। बेसिकली आपका जो एग्जाम होगा, दिस विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग ऑन दीज 4 पैरामीटर्स। ठीक है ना? व्हाई दिस इज डन? क्योंकि किसी ने बीकॉम किया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने बीटेक किया है, इसीलिए एक कॉमन टेस्ट सबके लिए रख दिया गया है और उसके बेसिस के ऊपर जो मेरिट जो है वो बनाई जाती है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या फर्क है। जब क्लासेस होती हैं, यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो वहां पे मैं बच्चों से आमतौर पे यही बात पूछता हूँ कि यू हैव टेकन 15 साल आपने पढ़ाई की है, तो 15 साल की पढ़ाई के बाद अब ये जो हमने तैयारी करनी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? इन दोनों में क्या फर्क है? बेसिकली मेंटल मेकअप क्या है, पेरेंट्स का मेंटल मेकअप, स्टूडेंट्स का मेंटल मेकअप, दैट मेंटल मेकअप इज कि बेसिकली कि मैं ग्रेजुएट हो गया या पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, इसके बाद गेटिंग गवर्नमेंट जॉब इज नॉट डिफिकल्ट। पेरेंट्स के माइंड में भी यही बात आती है कि बेटा बेटी ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब तो फॉर्म भरेंगे, नौकरी निकलेगी, फॉर्म भरेंगे और उसके बाद शायद अपॉइंटमेंट लेटर ही आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस डजंट हैपन। क्यों? क्योंकि पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कंपटीशन है, ठीक है, और इस कंपटीशन में और कॉलेज की जो एग्जाम है वहां पे बहुत बहुत फर्क है। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड आल्सो। ठीक है, कॉलेज में एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉलेज में हमें लिखना पड़ता है बहुत सारा, यहाँ पे आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी, रीडिंग बहुत करनी पड़ती है आपको। कॉलेज में एक दो बार पढ़ा, याद हो गया, पेपर दे आए, यहाँ पे आपको बहुत सारी रेपिटेशन करनी पड़ेगी आपको। कॉलेज में, स्कूल में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ सॉल्व नहीं, फास्ट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। कॉलेज में आपका कंपटीशन विद इन द 4 वॉल्स है, यहाँ पे ऑल इंडिया कंपटीशन है, और दिस कंपटीशन इज हाईली अनइवन आल्सो। तो अब जो बात मैं अब यहाँ पे कहने लगा हूं, एक इंपॉर्टेंट पर्सन ने कही है कि गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब, जैसे मैं पहले कहा था, इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। सक्सेसफुल पीपल, दे डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, अब ये डिफरेंट चीज क्या करनी है ये आपको जानना है कि व्हाट शुड बी दैट डिफरेंट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। उसके बारे में आप भैया आपको बताऊंगा कि वो चीज क्या होनी चाहिए। हाई रीडिंग स्पीड, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। These are the skills required to, you can say, get a government job. Knowledge of current affairs, knowledge of 6th to 10th class books. अब जब बच्चों से ये बात करते हैं ना कि ये रीडिंग स्पीड, इसका क्या एडवांटेज है, ये करंट अफेयर्स, इसकी क्या अहमियत है, और ये 6th to 10th क्लास की बुक्स, what is the advantage of going through these books? Now, it is because all your examinations will be based on questions from the books, or the, you can say, books you have read from 6th to 10th class. उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, इवन फॉर आईएएस उसके बाहर नहीं आते हैं। मैं जितने हमारे कॉमन एग्जाम हैं, बैंकिंग के हो गए, आईबीपीएस के हो गए, एसएससी के हो गए, all these exams are based on this particular, you can say, knowledge of 6th to 10th class. और रीडिंग स्पीड, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ। ठीक है, व्हाई रीडिंग स्पीड इज एसेंशियल? क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में बहुत सारा काम करना है।
बहुत सारा पेपर पढ़ के उसके जवाब देने हैं। और हमारे कॉलेज वाले जो एग्जाम होते हैं वहां पे आउट ऑफ 10 यू मे हैव टू गो थ्रू, आपको 5 या 10 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास अनफ टाइम होता है वहां पे पेपर करने के लिए। पर यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग, 1 घंटे में, इन 1 hour you are supposed to attempt more 100 questions. In 1 hour you are supposed to attempt 100 questions. And उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, ये क्यों, इसके बारे में भी मैं आता हूं कि ये जो एग्जाम है हमारे, स्पेशल फीचर ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पे 1 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। 1 single mark is very very important. बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, कहते हैं सर मैं 0.25 से रह गया, मैं सिर्फ 0.5 से रह गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 0.25, 0.5 या 0.7, इसके ऊपर कम से कम कई बार 100, कई बार 1000 कैंडिडेट्स भी होते हैं। 1000 on these small numbers. So it is very important कि आपका एक एक नंबर जो है वो मैटर करता है इन सब एग्जाम्स के लिए। और मैटर ये करता है कि आपकी बेसिकली अटेम्प्ट करने की स्पीड क्या है। ठीक है, और उसके साथ साथ कि इन एग्जाम्स में देयर आर नो फेलियर्स, यहां पे कोई फेलियर नहीं होते। आप सोचे कि पहली बार एग्जाम दिया, पहली बार क्लियर हो जाए, इट डजंट हैपन, क्योंकि आपने 15 साल स्कूल कॉलेज के एग्जाम दिए हैं, और 15 साल में द मेंटल मेकअप इज कि मुझे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर रहा है, पूरा करना है। इन दीज एग्जाम्स यू आर नॉट एक्सपेक्टेड कि आपको पूरा पेपर पूरा करना है। आपको सिर्फ जितना पेपर अच्छे से आता है उनके जवाब देने हैं और ठीक जवाब देने हैं, क्योंकि पुरानी आदतें हमें थोड़ा मुश्किल से जाती हैं, इसलिए हम गलती करते हैं कि वी ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इसीलिए जब तक हम एग्जाम नहीं देंगे हमें पता नहीं लगेगा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 1 मार्क की इंपॉर्टेंस है वो हमें कहां से पता लगती है कि जब मैं कहता हूं एग्जाम में मेरे 0.5 मार्क्स कम रह गए, तो दैट मीन्स यू शुड नो कि आपकी सिर्फ यू आर जस्ट नियर सक्सेस, आप अपनी सफलता के बहुत नजदीक थे, सिंपली मिस कर गए। क्यों मिस कर गए? कोई छोटी सी गलती की होगी आपने, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू इम्प्रोवाइज ऑल्सो। उसको आपने ठीक कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब। अब हम देखते हैं कि हायरार्कीज क्या होती हैं। ठीक है, बैंकों की बात करें तो आरआरबी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये क्लरिकल जॉब्स हैं। यहाँ पे ऑफिसर्स की जॉब की बात करते हैं तो वहां भी आरआरबी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये सैलरी स्ट्रक्चर है उनका। ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन बेसिकली, आई थिंक ये आपको पता भी होगी। और ऐसे ही हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवेज है, डिफेंस है, आईएएस के लिए यूपीएससी है, डिफेंस के लिए भी यूपीएससी है, रेलवे के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और उसके नीचे जो ग्रेड बी और उसके नीचे वाली जॉब्स हैं उसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। अब व्हेन यू आर इन द फॉर्मेटिव एज, ठीक है ना, तो व्हाट शुड बी द अप्रोच, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड बी द, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इजी अप्रोच क्या है कि जी +2 के बाद कॉलेज गए हैं, लेट अस एंजॉय, उसको टाइम को एंजॉय करते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि जिंदगी में करना क्या है। बट सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं कि वो कॉलेज ज्वाइन करने के साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर लेते हैं और उसको डेली करते हैं और साथ में एग्जाम देते रहते हैं और अपनी तैयारी को, बाय द टाइम दे आर आउट ऑफ कॉलेज दे आर बेसिकली प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जाम। ठीक है जी, और ये भी आपको पता होना चाहिए
कि गवर्नमेंट एग्जाम में देयर इज नो वेटेज फॉर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन इज सिंपली a qualification. Graduation doesn't get you a job. It is simply a qualification. उसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते. मार्क्स किस चीज के मैटर करेंगे? आपके मार्क्स मैटर करेंगे कि आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके कितने नंबर आए हैं. ये एक बहुत फेमस है कि बिना कठिन परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती. कुदरत चिड़ियों को खाना जरूर देती है लेकिन उनके घोंसले में नहीं डालती. और वी कैन से द ओनली प्लेस वेयर द सक्सेस कम्स बिफोर वर्क इज इन डिक्शनरी. ठीक है, अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपने नौकरी लेनी है तो उसके लिए पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी और जो मेहनत करके ही आपको जो फिर कामयाबी मिलेगी. नाउ अब फिर आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर हमें करना क्या चाहिए, शुरू कहां से करें? ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज शुरू कहां से करें? स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर रीडिंग. मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट है. दिस इज द मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट. ठीक है ना. और जब कॉलेज वगैरह से बाहर आते हैं, जब सोचने लगते हैं तो तब सोचते हैं कि शायद हमें ये अखबार पढ़ना चाहिए था. ठीक है, पर ये जो चीज है कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ योर हैबिट. न्यूज़पेपर रीडिंग, इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? वो एडवांटेज क्या है? दिस विल, मैं बेसिकली ये नहीं कह रहा कि यू शुड बी रीडिंग, मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर में थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि आई डोंट हैव स्पेशल इंक्लिनेशन फॉर इंग्लिश, बट बेसिकली हमारे जितने भी एग्जाम हैं वहां पे इंग्लिश इज वन ऑफ द कंपोनेंट. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश का अखबार जो है, आई डोंट से कि हिंदू पढ़िए, द हिंदू अखबार पढ़िए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़िए, द ट्रिब्यून पढ़िए, बट यू शुड स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर. क्योंकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू, तो वहां पे द क्वेश्चंस आर आस्क्ड नॉट फॉर योर सब्जेक्ट्स, 90% क्वेश्चंस आर फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस. और अगर आप अखबार रूटीन में पढ़ रहे हैं तो आपको किसी भी इशू की बैकग्राउंड भी पता होगी, आप उसे विद कॉन्फिडेंस उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर कॉन्फिडेंस शुड रिफ्लेक्ट. क्योंकि जब इंटरव्यू में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपका आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो वो कहां से आता है? दैट कम्स फ्रॉम द नॉलेज आल्सो. और इसके साथ साथ जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग है, इसके साथ साथ और क्या करना चाहिए? फोकस ऑन बेसिक कैलकुलेशंस. ये चीज मैंने बच्चों में मिसिंग देखी है कि कैलकुलेटिव एबिलिटीज हैं वो कहीं कम होती है. क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात, आजकल कैलकुलेटर आ गए, एवरीथिंग हैज बिकम वेरी इजी, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. एंड सेकेंडली, क्योंकि वी हैव नेवर अंडरस्टूड द इसकी मायने क्या है फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए. एंड आई बेट कि अगर आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज कर लेंगे तो आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम भी बहुत फास्ट और बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे. नॉर्मली मैंने देखा है बच्चों को टेबल नहीं आती, दे डोंट नो द टेबल्स. टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए, ऐसे बिल्कुल रट्टे होने चाहिए. somebody asks you 97 all this, ठीक है ना, तो आप लिखने लग जाते हैं. मैं से 133, ठीक है ना. तो वो क्या है कि आई एम नॉट थिंकिंग, मैं सोच नहीं रहा, मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं. मैं कहता हूं 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका टोटल क्या है? ठीक है, आप कैलकुलेट करने लग जाएंगे. ऐसे 55, ठीक है ना. तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए. सिमिलरली आपके स्क्वायर्स, अंडर रूट्स, ये चीजें जो हैं आपको बहुत बहुत याद होनी चाहिए. यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दीस थिंग्स, सिर्फ याद होनी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू अपने जवाब बहुत तेज से कर सके. सिमिलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो चीजें बहुत मैटर करती हैं. ठीक है, दैट इज दिस कैलकुलेशन स्पीड एंड सेकंड इज नॉलेज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमने ये देखा है कि नॉर्मली क्योंकि
वहां पे कहीं शेक्सपियर आ रहा है, कहीं पे विल्सन आ रहे हैं, तो पोएट उनकी पोएम्स हैं, ऑल दोस थिंग्स, वो एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। इस एग्जाम में लिटरेचर के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इट इज दे आर आस्किंग यू नॉलेज ऑफ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, ग्रामर की लैंग्वेज, ग्रामर की जो नॉलेज है, और उसके बेसिस के ऊपर आपके जो फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड मेकिंग द पैराग्राफ्स आल्सो, अरेंजमेंट आल्सो, वो चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो वो चीजें हमारे क्योंकि सिलेबस में नहीं है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। मैं आप ये नहीं कह रहा कि आपकी गलती है, इट्स अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो उसके लिए जो है हमें ये चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा था न्यूज़पेपर, दूसरे नंबर पे क्वांट एंड इंग्लिश की नॉलेज, ये तीन चीजों में आपकी बहुत बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड देन यू कैन डू इट। फोर्थ जो हमारा सब्जेक्ट रहता है दैट इज रीजनिंग एबिलिटी, वो मैं कहता हूँ कॉमन सेंस का सब्जेक्ट है, इट इज, ये कहीं सिलेबस में नहीं होता, ठीक है। नाउ ये भी, लेट नॉट द फेलियर डिटर यू। कैंडिडेट्स एक बार एग्जाम देते हैं, 2 बार एग्जाम दे देते हैं, और फिर सोचते हैं कि एग्जाम तो हुआ नहीं, पास नहीं हुआ, छोड़ दो, ये हमसे नहीं होगा, ठीक है। लेट नॉट द फेलियर डिटर यू, इससे घबराना नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, तो असल में वो 2 चीजें कह रहा है, मुझे पता नहीं कि कैसे होगा, या मैं इसे करना नहीं चाहता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इन एग्जाम्स में आप फेल नहीं होते। और जब मैं बात कर रहा था आपके साथ, 1 मार्क की बात कर रहा था, 1 नंबर की बात कर रहा था, यहां पे आप एग्जाम में फेल नहीं होते, आप सिर्फ मेरिट लिस्ट में आने से रह गए हैं बाय अ फ्यू मार्क्स। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरी उसमें क्या मिस्टेक रह गई, किस चीज में मेरी कमी रह गई, और मैं उस चीज को इंप्रूव कर लूं, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि डॉक्टर जो है, वो आप जाएंगे डॉक्टर को जाके कहेंगे सर मैं बीमार हूं, दवाई दे दीजिए, ठीक है, तो ही विल आस्क यू कि आपकी बीमारी क्या है, आपके पेट में दर्द है, आपके सर में दर्द है, व्हाट इज द, आपको किस चीज की दवा देनी है। तो सिमिलरली इफ यू नो कि मेरी इस चीज में प्रॉब्लम है और आपको पता लग जाए, आप उसकी दवाई ले सकते हैं, ओके। और वंस अगेन, जैसा मैंने ये भी कहा था, 1 साल में कोई एक एग्जाम नहीं होता, 1 साल में तकरीबन 35-40 एग्जाम होते हैं। बैंकिंग के ही 10-12 एग्जाम होते हैं, 4-5 इंश्योरेंस के होते हैं, फिर स्टेट्स के एग्जाम होते हैं, फिर सेंटर के एग्जाम्स होते हैं। अब सेंटर की लिस्ट निकाल लीजिए, 15-20 तो वहीं पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। दैट मीन्स 1 साल में देयर आर अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 चांस आपको मिलेंगे टू टेस्ट योरसेल्फ आल्सो, ठीक है। अब द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्शन। एक्शन में क्या है, बी फोकस्ड। आपने अपना जो मकसद बना रखा है जिंदगी में, उससे आगे पीछे नहीं होना है, ठीक है। और बेसिकली करना क्या है, आपको रिवीजन करनी है, ठीक है, और प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से करना है, और अपना टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। अगर आपने ये 4 चीजें कर ली, then you can say you can very well succeed in exam. कुछ नहीं करना, be focused, ठीक है। दोबारा से कहना, be focused, मुझे ये करना ही करना है, I want to attain it, I will get it also, ठीक है। और I remember कि when we were in the college school में थे, तो my grandfather used to say कि when you get up in the morning, तो हर रोज कहिए day by day in every way I am getting better and better, day by day in every day in every way आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, ठीक है। और हर रोज अपने आप में देखिए कि मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं। जो करना है, जो किया है, उसकी रिवीजन कीजिए, प्रीवियस पेपर्स के ऊपर स्पेशल एम्फेसाइज कीजिए, और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वो क्यों कहता हूं मैं, क्योंकि 90 नहीं, ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि सर मुझे टाइम और मिल जाता तो मेरा पेपर पूरा हो जाता और मैं एग्जाम जो है मेरा क्लियर हो जाता। ये ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ठीक है ना। एक छोटी सी एग्जांपल देके चलता हूं कि आप घोड़े के साथ भाग नहीं सकते, आप घोड़े की सवारी जरूर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन मैनेज योर टाइम,
आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी दैट्स ए स्पेशल रिगरस एक्सरसाइज जो कि आपको माइंड में करनी है कि मुझे इतने टाइम पे ये क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन मेरे हो जाएंगे। सो व्हेंस आपने ये चीजें कर ली एंड देन आई से द गवर्नमेंट जॉब इज योर्स। फिर उसके बाद आपको लगेगा, फिर आपका दिल बोलेगा कि अब जो है मेरी तैयारी पूरी हो गई है और अब जो है मेरा एग्जाम भी क्लियर होगा। मैं बार बार बच्चों से ये भी पूछता हूं कि आप जब एग्जाम देके वहां से बाहर निकलते हैं तो आपको क्या लगता है, आर यू अवेयर आपके कितने मार्क्स आएंगे वहां पे? एवरीबडी सेज कि हमें पता होता है कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो यहां भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेंटर से बाहर निकलते हैं आपका दिल बोलता है कि ये एग्जाम मेरा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, क्यों? इट विल वंस अगेन डिपेंड अपॉन कि आपने कितनी मेहनत की उसके लिए, कितनी तैयारी की, कितना फोकस किया और कितना आपने उसके टाइम मैनेजमेंट किया। ये चीजें आपने कर ली तो फिर मैं कहूंगा यस दिस गवर्नमेंट जॉब इज योर्स। तो ये चीज मुश्किल नहीं है, गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, द ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू गेट इट। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेमिनार। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है तो मैं उस चीज को पढ़ देता हूं। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। ठीक है, उस दिन रात दिमाग में आपके यही होना चाहिए, मुझे यही करना है, यही अटेम्प्ट करना है और यही मुझे अचीव करना है। ठीक है, अगर आपका सारी मेंटल फैकल्टीज इस चीज के ऊपर लगी रहेंगी देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ आल्सो एंड गेट अ गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी, सो वी विश यू सक्सेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफी इंफॉर्मेशन इससे मिली होगी। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके और बहुत सारी बातें मैं कर भी सकता था। जैसे मैं बात कर रहा था कि एग्जाम को पास करने के लिए क्या चाहिए। ठीक है ना, तो मैं एक चीज पहले बच्चों से कहता हूँ कि पहले तो मोबाइल से छुटकारा डालिए अपने आप को। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन आज की लाइफ में क्या है? ये मोबाइल है। okay? और सेकेंडली यू शुड हैव द राइट कंपनी। आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड हैव कंपनी विद दोज कैंडिडेट्स जो के तैयारी कर रहे हैं, ना कि वो कैंडिडेट जो कि सिर्फ जो है सिर्फ घूमना जानते हैं। एक किस्सा याद आ गया मुझे। ठीक है ना, आई कैन शेयर दैट विद यू आल्सो। एक पार्टी में मैं गया। ठीक है, उस पार्टी में जब मैं गया तो वहां पे एक यंग सा लड़का, ठीक है, हु वाज द एज ऑफ माय सन, वो मेरे पास आया तो उसने आके पाँव छू लिए मेरे। ठीक है, कहता अंकल पहचाना मुझे? तो मैंने कहा, तो उसने दाढ़ी बड़ी सी बढ़ा रखी थी, बाल उसके लंबे लंबे बाल उसने पीछे जुड़ा कर रखा था। मैंने कहा बेटा मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। ठीक है जी। कहता अंकल, उसने अपना नाम बताया। ठीक है, ओ मैं क्या तू तू तो कहता हाँ अंकल। ठीक है, तो बिकॉज कहता अंकल, तो वो बताने लग गया अपने बारे में। कहता अंकल आपको पता है कि मैं आईआईटी में कैसे पहुंच गया? मैंने कहा तुमने तैयारी की थी तो इसीलिए पहुंच गया। कहता मैंने ऐसे नहीं पहुंच गया। ठीक है ना, कहता सुबह हर रोज 5 बजे हैप्पी, वो मेरे बेटे को हैप्पी कहता वो मुझे जो है ना हर रोज सुबह 5 बजे मेरे घर आ जाता था। चल उठ जल्दी कर, अभी ट्यूशन पे जाना है। ठीक है, ही यूज्ड टू, वो मुझे उठाता था और मुझे अपने साथ लेके जाता था कि चल तैयारी करो। और वो दोनों के दोनों जो वो उनका ग्रुप था 3-4 फ्रेंड्स का। ठीक है, ऑल ऑफ देम दे वर एबल टू क्रैक द आईआईटी आल्सो। तो ये जो कंपनी है ना ये बहुत मैटर करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कंपनी गलत कंपनी है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, अच्छी कंपनी जो है वो आगे ले जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं मैं क्या कर सकता हूँ, पर टाइम की लिमिटेशन है तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके आए हैं। कंप्लीट सिलेबस फॉर पटवारी एग्जाम एंड रिसोर्सेज आल्सो। तो पटवारी में बेसिकली अब पंजाब में पटवारी का एग्जाम आने वाला है, तो वहां पे आपका जो एक तो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपके मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे वहां पे, और उसका मैं आपके साथ वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। सबके साथ ही शेयर कर देंगे जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वी विल बी शेयरिंग ऑल दिस क्वेश्चन विद यू।
कि वहां पे पटवारी में आपके पास क्या है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, आपका मेंसुरेशन के क्वेश्चन आएंगे, अकाउंट्स के क्वेश्चन आएंगे, जीएस आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, पंजाबी आएगा. नाउ दिस इज बेसिकली यू कैन से द सिलेबस फॉर पटवारी एग्जाम्स. तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है टोटल, और रिजल्ट भी इसमें जल्दी से आ जाता है. रिसोर्सेज क्या क्या हैं? रिसोर्सेज में आई कैन से कि वी हैव स्टार्टेड, जैसे पीसीएस का बैच है हमने शुरू किया है, सिमिलरली बैंकिंग का बैच है वो भी चल रहा है हमारा, लॉ एंट्रेंस के एग्जाम है उसके लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं. ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जैसे आईबीपीएस के बैंकिंग जॉब्स है उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं. पटवारी का बैच भी हम अभी शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके लिए स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको. ज्ञानम ने दे हैव पब्लिश्ड मेनी बुक्स ऑन दिस, तो वहां से आप अगर आप वो भी आप ले सकते हैं. So that is for the Patwari exam and the resources. What is the scope of psychology in the government jobs? I am pursuing BA in psychology. गवर्नमेंट जॉब में किसी क्वालिफिकेशन की कोई भी अहमियत नहीं है. आई एम ए साइंस ग्रेजुएट, बेसिकली आई एम ए साइंस ग्रेजुएट. ठीक है, आई एम ए बैंकर, 30 साल मैंने बैंक में जॉब किया है. और अगर आप देखते हैं आज की डेट में तो अराउंड 30-40% जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या सर्विस कमीशन में हैं, वो 30% 40% जो हैं दे आर आइदर डॉक्टर्स और दे आर इंजीनियर्स. ठीक है, सो एडवांटेज ऑफ एनी स्पेशल सब्जेक्ट, it doesn't matter at all in these government jobs. Okay, it will only matter when you take specialization for, you can say, higher level of exam for IAS, for PCS. और IAS में भी मैंने देखा है इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, they do not opt for medical examination. वो कोई सोशियोलॉजी अडॉप्ट करता है, कोई पॉलिटिकल साइंस अडॉप्ट करता है, ठीक है, कोई इकोनॉमिक्स अडॉप्ट करता है. they do not go for their own special subjects. ठीक है, so आपका क्वेश्चन ये था कि साइकोलॉजी की एडवांटेज क्या होगी. साइकोलॉजी की नॉलेज अपने आप में बहुत अच्छी एक एडवांटेज है, बट एग्जाम्स में इसकी कोई एडवांटेज नहीं रहेगा. स्कोप ऑफ एसएससी जॉब एंड एओ इंश्योरेंस जॉब आफ्टर पैंडेमिक, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड इफ फेल्ड, हाउ लॉन्ग वन शुड ट्राई. यस, हाउ लॉन्ग वन शुड ट्राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बार में एग्जाम हो जाए पहली बार में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. ठीक है, होता नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बात तो ये है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत ज्यादा हैं. कौन सी शिफ्ट में डिफिकल्ट एग्जाम आ गया, कौन सी एग्जाम शिफ्ट में इजी एग्जाम आ गया, यू डू नॉट नो. ठीक है, शुरू में कई जो एग्जाम होते हैं, जैसे इंटरव्यू में होता है, पहले 2-4 इंटरव्यू मुश्किल होती हैं, उसके बाद वाले कैंडिडेट को पता लग जाता है इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हैं, उनके लिए आसान हो जाता है. ठीक है, तो ऐसे ही इन एग्जाम्स में भी होता है. ठीक है, सो दैट मींस यू हैव टू कंटिन्यू. 5-6 बार तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए. यू मस्ट अटेम्प्ट. ठीक है, एक साल में 5 एग्जाम देने ही चाहिए आपको. ओनली देन यू, फिर एक कहते हैं कि यू गेट अकस्टम्ड टू द एग्जाम. आपकी बेसिकली अभी तक वो मेंटल स्पीड ही नहीं बनी एग्जाम देने की. क्यों? बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन 3 आवर फॉर्मूला. 3 घंटे में 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, यहां पे आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं. वो मेंटल मेकअप चेंज होने में टाइम लग जाता है. इसीलिए क्योंकि आप, मैं गारंटी करता हूं कि आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपको पेपर दे दिया जाए. ठीक है ना, व्हाट टेक्स यू अवे इज कि आप उन टाइम में मैनेज नहीं कर पाते उस एग्जाम को. वंस अगेन, क्योंकि आपका मेंटल मेकअप नहीं बना है वैसा अभी, तो इसलिए 5-6 बार फेल नहीं हुए आप. वंस अगेन दोबारा कह रहा हूं, फेल नहीं हुए आप. ठीक है ना, you just missed it by 1 or 2 numbers. For my line, I want to learn about something which will help me to get my job easily, like some interview skills. Interview skills we can have another session. उसके लिए अलग से सेशन कर सकते हैं. आज के टाइम में जो है हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात कर सकूं. बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपकी आधी तैयारी हो चुकी है उसके लिए. हाउ टू क्रैक स्टेट एग्जाम स्टडी मटेरियल एंड हाउ टू गेट इट.
हाँ जी, हाउ टू क्रैक द स्टेट एग्जाम स्टडी मटेरियल, हाउ टू डू प्रिपरेशन विद द कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है जी, जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसे अपनी मुश्किलों का पता है, he knows his difficulties also, ठीक है ना। और मैंने ये भी देखा है कि ऐसे एम्प्लॉयज ज्यादा मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज उन्हें अपनी सीट की पावर का भी पता होता है और उन्हें अपने लिमिटेशन का भी पता होता है वहां पे। ठीक है, सो टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है। इफ यू आर एबल, एक डिसिप्लिन तरीके से आप डेली तैयारी करें, 3-4 घंटे लगा के तैयारी करें। एक बार आपने अच्छे से तैयारी कर ली 3-4 महीने लगा के, उसके बाद आप 2-3 घंटे रूटीन में उसकी प्रैक्टिस करें, यू कैन क्रैक एनी एग्जाम। ठीक है, आईएएस के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है, पर बाकी एग्जाम जितने भी हैं, अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली और उसके बाद आप 2-3 घंटे डेली उसके ऊपर बिना नागे लगाएं, ठीक है, तो यू कैन क्रैक एनी गुड एग्जाम्स। हाईलाइट गवर्नमेंट जॉब फॉर दोज हु बिलोंग टू मेडिकल सेक्टर एंड जॉब्स। ठीक है, मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर में नो इम्पोर्टेंस फॉर द बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने पहले कहा कि मैंने बैंक में 30 साल जॉब किया है, आई एम फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड। ठीक है जी, साइंस बैकग्राउंड से हूं मैं। ठीक है, रघुराम राजन, ही वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, ही वाज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। ठीक है, सो इट डजंट मैटर। आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, वो बीडीएस किया है, किसी ने उस फार्मेसी किया है। ठीक है, तो चाहिए क्या, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए आपकी, और आपका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब्स इन पंजाब, हाउ टू गेट ऑल नोटिफिकेशंस। आप ज्ञानम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। प्ले स्टोर के ऊपर आपको नोटिफिकेशन ये मिल जाएगी। डिटेल नॉलेज ऑफ द एग्जाम एंड स्टडी प्लान। नाउ जैसे जैसे कोई एग्जाम आता है, वी ऑल्सो गो इन द यूट्यूब और वहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, एंड वी विल कीप ऑन डूइंग इट। यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, और आप प्ले स्टोर पे जाके, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप अपनी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां पे आपको भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। स्कोप ऑफ द जॉब्स एंड हाउ टू कोप अप विद द कंपटीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कोप अप विद द कंपटीशन। क्योंकि जब रिजल्ट आता है ना, और रिजल्ट आने के बाद इफ यू आर नॉट देयर इन द मेरिट लिस्ट, तो वहां होता क्या है कि लोग ये कहते हैं आप फेल हो गए। लोग ये कहते हैं कि आपका दिल नहीं कहना चाहिए कि मैं फेल हो गया, आपका दिल ये बोलना चाहिए कि बस मेरी थोड़ी सी मंजिल और दूर है। दैट इज व्हाट यू शुड थिंक अबाउट। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद दिस। ठीक है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है कि जो मेरे में कमी रह गई उसको मुझे पूरा करना है। ठीक है, लोग तो सिर्फ मजे लेते हैं, सिर्फ मजे लेते हैं, वो उनको दूसरों के दर्द में सुख मिलता है कहीं ना कहीं। आम तौर पे देखा है मैंने ये। ठीक है, ये जो एग्जाम है, ये कोई आम एग्जाम नहीं है, दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहां पे कंपटीशन है, यहां पे पास और फेल नहीं है। यू आर आइदर इन द मेरिट लिस्ट और यू आर नॉट इन द मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज वॉइसेस। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिला तो एक कहानी छोटी सुना सकता हूं मैं, अभी टाइम नहीं है तो बाद में अगर टाइम मिलेगा तो। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कहानी सुनाऊंगा लंबी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। स्कोप इन टीचिंग फील्ड, टारगेट्स रिक्वायर्ड टू बी अचीव। ठीक है, टीचिंग फील्ड में भी देखिए ये एक नया फील्ड शुरू हो गया है टीचिंग में, आफ्टर 2009 बेसिकली, आफ्टर द पैसेज ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट। 2002 में हमारा 19 अपना जो था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, एंड राइट टू एजुकेशन वाज मेड ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आल्सो। तो उसके बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, और जैसे कि स्कूलों में पहले भर्ती हुआ करती थी वो बंद हो गई। सीटेट का एग्जाम और स्टेट लेवल टेट का एग्जाम वो शुरू हो गया, and all teaching exams now are based on that particular merit list कि उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन भी, जैसे अभी
हेडमास्टर और प्रिंसिपल की जॉब्स हैं, पंजाब में निकली हुई हैं। हिमाचल में भी टीजीटी एम्प्लॉइज की जॉब्स निकली हुई हैं। तो बहुत सारी जॉब्स ऐसे निकलती हैं, तो वो भी वी विल बी कीप ऑन अपडेटिंग ऑन द वेबसाइट और अपनी एप्लीकेशन में हम डालते रहेंगे। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एंड प्रिपेयर इन द लिमिटेड टाइम, ठीक है। डू नॉट गेट स्वेड अवे, मोबाइल को बंद कर दिए, ठीक है, 50% प्रॉब्लम तो वहीं दूर हो जाएगी आपकी, ठीक है। यू शुड स्विच ऑफ योर मोबाइल फॉर द टाइम, जब आपने पढ़ना है ना तो उसमें मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए आपको, ठीक है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि क्लास में कोई बच्चे, क्लास चल रही है, मोबाइल ऑन है, आपका माइंड दो तरफ नहीं हो सकता। आप सुन भी रहे हैं टीचर को, आप मोबाइल भी के जो है उसकी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। यू कैन नॉट बी एट टू प्लेसेस एट द सेम टाइम, ठीक है। तो जिन्होंने मोबाइल बंद कर दिया तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो गई आपकी। और सोशल मीडिया से भी बच के रहिए, दूर रहिए, बिकॉज दैट इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन आल्सो। व्हाट इज द स्कोप एंड जॉब मार्केट फॉर साइकोलॉजी, ये हमने किया था, साइकोलॉजी फील्ड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, ये हमने पहले किया था कि साइकोलॉजी पर से ऐसे कोई अलग पे जहाँ पे जॉब्स नहीं होंगी। Any updation? I'm working in the postal assistant department of post. I'll be 31 years old but want to change my job. Please guide me whether to stay in the same department or go for promotion. Should I go for SSC, CGL? देखिए CGL वगैरह में जाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज वहाँ पे एज लिमिट्स हैं, ठीक है। तो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। आई डू नॉट नो योर बैकग्राउंड एंड इफ यू आर कोई स्पेशल कैटेगरी में है या एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस हो सकती हैं, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी ऑप्शंस। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं वहीं पे अप्लाई कीजिए, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। टिकट कलेक्शन की जॉब कब निकलती है? रेलवे की जॉब्स हैं ये, ठीक है। तो उसी में आरआरबी में आपके पास ये नोटिफिकेशन आती रहेंगी, ठीक है जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल का जो एग्जाम है वहां पे 26 तरह की वैकेंसीज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, सीबीआई, आईबी, रेलवे, पुलिस, ये सब एग्जाम वहां पे आपके पास ऑप्शंस हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट, कि आप मेरिट पे कहां पे हैं, यू विल गेट दैट काइंड ऑफ जॉब फ्रॉम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जुलाई गवर्नमेंट एग्जाम और जॉब, ये आई एम नॉट वेरी क्लियर, विच वन इज बेटर, स्टेट गवर्नमेंट जॉब और बैंकिंग? हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब अच्छी है कि बैंकिंग की जॉब अच्छी है? अगर काम ज्यादा करना है और कैरियर में आगे बढ़ना है तो बैंकिंग की जॉब अच्छी है। अगर थोड़ा आराम करना है और घर के अंदर रहना है तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब अच्छी है। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब इन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, वंस अगेन कुछ तो पर्टिकुलर फील्ड होंगे। ये सब जो है बेसिक, आर्मी के में फीमेल जॉब, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, परमानेंट कमीशन उनके लिए अलाउ हो चुका है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स वहां पे आपके लिए सफिशिएंट जॉब्स हैं। तो आर्मी में भी बेसिकली वहां पे कोटा हो गया है एंड यू कैन गेट इनटू द जॉब्स इन द आर्मी में भी। अभी एग्जाम आने वाला है, नर्सिंग का जॉब आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, तो वहां पे बहुत सारी जॉब्स होंगी। एफकैट की अभी नोटिफिकेशन आई है, एनडीए की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एनडीए में गर्ल्स के लिए नहीं होता, पर बाकी जगह जो सीडीएस के एग्जाम्स होते हैं वहां पे गर्ल्स कैन अप्लाई। आरआरबी, एनटीपीसी बस आने ही वाला है, दिस वाज इन द न्यूज़ वेरी रिसेंटली, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट, जो कि आपके डिफरेंट क्वेश्चन थे। आई होप के उन सबके जवाब तो शायद मैं अभी नहीं दे पाया हूं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि वी हैव लॉट्स एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद अस व्हिच वी कैन शेयर विद यू। एंड वंस अगेन, अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप हमें जो है मेल कर सकते हैं या उसे ऐसे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आई लाइक टू सम अप नाउ, कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि गेटिंग ए गवर्नमेंट जॉब इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है ना। द ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल दैट आपने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया, अटेंड किया, एंड मुझे लगता है कि वी हैव बीन एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज। पर अगर फिर भी हैं तो आप SMS व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। विद दिस आई थैंक यू ऑल एंड विश यू सक्सेस। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वी आर हैविंग आवर ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि हम आज की डेट में कर रहे हैं। यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन कोर्सेज ऑल्सो,
क्योंकि ये कोविड का जो टाइम है, यहाँ पे इट इज नॉट पॉसिबल कि वी कैन हैव क्लासेस। तो ये जो टाइम है, यू शुड नॉट लूज दिस पर्टिकुलर टाइम। इस टाइम में तैयारी के लिए जो टाइम है उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए। तो दैट इज वाई कि आप ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कीजिए, ताकि आपकी जो बाय द टाइम के एग्जाम आ जाए आपके पहले से तैयारी हो रखे। और फिर हमारा एक कॉमन मोबाइल नंबर है, यहाँ पे नहीं डाला है हमने, 9117343434, ठीक है, ये चैट में डाल दीजिए वहां पे, ताकि सबको ये नंबर मिल जाए, 9117343434, ठीक है। मैंने ये नंबर रिपीट किया है, चैट में भी डाल दिया है, आप वहां पे देख भी सकते हैं। एंड विद दिस वंस अगेन आई थैंक यू ऑल। और मुझे लगता है कि आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, I have been in a position to deliver that information to all of you. Thank you.